फैक्ट्री को सर्व करने के लिए इकोसिस्टम के प्लेयर्स की 5 फैक्ट्रीज और उधर पास में लगी है। इसी तरह से जो इक्विपमेंट यूज होता है सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में, वो इक्विपमेंट भी भारत में मैन्युफैक्चर हो, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अप्लाइड मटेरियल्स और लैब रिसर्च ये दोनों को मिला लो तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का करीब करीब 50-60% इक्विपमेंट अपना मेजर बेस भारत में बना रहे हैं और दोनों के प्लांट्स में काम स्टार्ट हो गया है और रैंप अप हो रहा है। बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज़ है ये सब आपके सामने मुझे डिटेल्स रखने थे। और जैसा साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत को एक बड़ी ताकत मिलती है और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी फाउंडेशन ले होती है। तो उसी कड़ी में जितने स्टेप्स लिए गए हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए गए, कुल मिला के 1,25,000 करोड़ के स्टेप्स प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में लिए गए, उसका एक डिटेल आपके सामने। धन्यवाद साथियों। आई टेक क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चंस का नया प्रोटोकॉल करेंगे हम आज से। पिछली बार मैंने आपको हिंट भी किया था, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट रो, देन गो टू द सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ऐसे करेंगे ताकि लोगों को इंसेंटिव भी रहे कि समय पे आए। 22 नंबर। पहले 2 नंबर से चालू करो। अच्छा ठीक है, 2 नंबर। हेलो, मतलब आपसे वो सीट एकदम 2 नंबर प्राइम सीट हो जाएगी। सर सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगा कि कितने इन्वेस्टमेंट आपने अप्रूव किए, क्योंकि ये टोटल प्रोजेक्ट 3,706 करोड़ का है। यूपी गवर्नमेंट ऑलरेडी इसको अप्रूव कर चुकी है, आप लोगों ने क्या अप्रूव किया, कितना इन्वेस्टमेंट आपने इसके? टोटल 3,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसमें, 3,706 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसमें, सब कुछ मिला के ये टोटल डेट, इक्विटी, सब्सिडीज सब मिला के 54। कंपनी का आप लोगों ने भी कुछ अप्रूव किया होगा? 54 वो तो पॉलिसी के हिसाब से होगा ना, 50% पॉलिसी के हिसाब से होगा। Hi, good afternoon, sir. So, firstly, congratulations on the 6th JV6 semiconductor unit in UP, first one in UP. That I have 3 questions, sir. Number one, this is the second attempt that Foxconn has made to come on and put out an OSAT. So, what has changed this time? Number two, will they be eligible for the pari passu benefits under the semiconductor phase 1 scheme? And this third one is a little forward-looking, sir. Any guidance on when we can expect Semicon 2.0? Foxconn, yes, this is the second attempt they have made. The partner they have selected is very good partner. Last time also they had their own internal reasons for not taking that unit forward. I don't want to comment on that. But HCL has a very long history of manufacturing electronics and computers. So, and they have come with a very specialized technology. In this particular, they have come with a very specialized technology. This is a technology called wafer level packaging, and this is specially focused on the display driver chips. There, what we understand is that once this unit is there, the display panel will also come to India. Once this chip display driver gets properly done here, then the display panel plant will also come to India. So this will more or less meet about 40% of India's capacity. It's a large plant. It's a large plant in terms of, and this will also basically be meeting the requirements of rest of the world for Foxconn. That's the way they have proposed this, and this is part of the semiconductor mission policy. And whatever the policy incentives are there, those incentives will apply. There is no change in that. I don't want to comment on when the semiconductor 2.0 will come. Let us first focus on executing what we are doing. It's very important to focus on execution, because when we are starting a totally new industry, we must make sure that what we have taken in our hands must be completed properly. So that's why our focus is on execution. Please introduce yourself before passing question. I am Ravi Shankar Kapoor, freelance journalist. Mr. Vaishnav, how many jobs this India semiconductor mission has created in the last 3 years? I can give it. बनी है, उसका एक
बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उसके ऊपर कई प्रेस ब्रीफिंग्स यहाँ पे हो चुकी है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन वाकई ये देश के लिए एक सराहनीय चीज। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा हम कैबिनेट के डिसीजंस पे फोकस करें। 13 नंबर। सर कृष्ण मोहन शर्मा भारत एक्सप्रेस से एक जानकारी मुझे ये चाहिए, जैसे 6 अपने सेंटर्स खोले गए सेमीकंडक्टर्स के, तो स्टेट्स का चयन किस आधार पे किया जाता है? स्टेट्स का चयन एप्लीकेंट्स खुद करते हैं। थर्ड रो इधर आ जाओ। 272। थैंक यू सर। आप प्रदीप टोटल न्यूज से सर, मेरा सवाल ये है, आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था सर। नहीं, अभी आप और केवल नहीं, कैबिनेट पे ही सर सवाल तय करें। सर, उस पे जिस तरीके से फैसले लिए गए सरकार की ओर से और किस तरीके से आप आत्मनिर्भर बनाए कैबिनेट डिसीजन पे फोकस करें। 166। गुड आफ्टरनून सर, मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज एंड न्यूज एक्सेस सर। सर पहला स्वदेशी चिप कब तक आ जाएगा, क्योंकि हम लोग 6 प्लांट सेमीकंडक्टर का करने जा रहे हैं। पहला 2025 में प्रोडक्शन हो जाएगा। फोर्थ रो। Yes. This is Pragya from Times Now. I just wanted to check with you whether government has taken any action on foreign media regarding fake news, sir. आज की कैबिनेट पे डिसीजन करो ना, इट्स नॉट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, इट्स अ कैबिनेट ब्रीफिंग। इस तरह फोर्थ रो। 45. Sir, could you speak about Jewar being chosen as the location for the setting up of this factory? And secondly, I wanted to check if the company has given any guidance in terms of operational rollout of chips from this factory. 2027 operational rollout. And Xaver is basically it's up and coming industrial area. ये 236 अभी इसी फ्लोर यहाँ 236. Hi sir, I'm Vesh from Economic Times. Sir, by when can we expect groundbreaking for this, and is there any projection of how much of this investment will be by the private sector and how much of it will be government subsidy? आपने देखा होगा in all the past 5 units, all the approvals were done in a very record time. Typically, this kind of plant takes about 2 to 3 years for getting all the permits and applications and approvals. And in all the past examples, we have done it within almost each one of them we have done within 120 days. Some of them were actually done within 60 days, within 70 days. So here also we expect that the groundbreaking and the construction will start very soon. Since the company has already told us that the commercial production will start in 2027. We are already in 2025, right? So that means construction has to go very fast. I think 49. इधर कोई नहीं है ना? हाँ 247 ठीक है। सर आपने अभी जिक्र किया टेक्नोलॉजी का और सेमीकंडक्टर का, एक और जिक्र किया कि हमारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सब जगह हम हो रहा है और बेहतर कर रहे हैं, और आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी किया। हम कैबिनेट से नहीं पूछेंगे ऑपरेशन सिंदूर का नहीं, लेकिन केवल हम जानना चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में क्या आने वाले दिनों में इतने उन्नत हो जाएंगे कि चाहे टर्की हो या फिर कोई अन्य कंट्री हो, वो हमें मात नहीं दे सकता, हम उनको हर क्षेत्र में पिछाड़ देंगे। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी में लंबी छलांग लग रही है और बहुत सक्सेस भी मिली है। आप चाहे देखो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजीज हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे एआई हो, चाहे मटेरियल साइंसेज हो, करीब करीब हर एक क्षेत्र में इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने जो फोकस दिया है टेक्नोलॉजी पे, उसका रिजल्ट दिखाई देने लगा है और रिजल्ट विजिबल है, सारी दुनिया आज जान रही है, आप भी जानते ही हो। और साथ ही साथ एक जो इम्पोर्टेंट बात है, अब बहुत सारे देश ना भारत के साथ को प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो जमाना गया जब पुरानी टेक्नोलॉजी को लेके टीओटी करते थे, अब को प्रोडक्शन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं। बहुत बड़ा चेंज आया है, माइंडसेट में चेंज आया है। देश के सामने रखिए इसको। दिस साइड 49 इस सर अपना परिचय भी देते हैं। सर मैं निशांत हूँ ANI से। जो ये सेमीकंडक्टर मिशन है, इसके बारे में जानना चाहूँगा कि ये जो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है,
उनको कितना इससे फायदा होगा और जो ग्लोबल मार्केट में हम कितना आगे तक जा पाएंगे इससे? इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, पर्टिकुलरली जो मेमोरी वाला प्लांट है उससे, और ये डिस्प्ले ड्राइवर वाला प्लांट है इससे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को। और जो आसाम में प्लांट है उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिलेगा और टेलीकॉम इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिलेगा आसाम वाले प्लांट से। और जो सानंद में दो दूसरे प्लांट्स हैं उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और इससे बहुत सारी जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है उनके लिए जो चिप्स चाहिए वो चिप्स सारी की सारी करीब करीब बहुत बड़ी मात्रा में इन प्लांट्स से मिलेगी और एक्सपोर्ट भी इनसे होगा। सर, मैं अमलेंदु भूषण खां हूँ, फ्रीलांस जर्नलिस्ट। ये 6th यूनिट में सिर्फ HCL ही दावेदार था या और कोई कंपनी थी, नंबर 1। और पिछले 5 जो सेमीकंडक्टर यूनिट है वो भी क्या HCL के ही अंडर में है या दूसरी कंपनी के अंडर में है? क्या जवाब दूं? 79. Sir, Prakash Pradhashi from ET Now. So it's 6 projects. So how many more such projects will be